Morning everyone, class 11th. Welcome to your TSN English class. Today we'll discuss this topic determiner from your grammar portion, and this one is the second video of your topic. So yesterday we just discussed about that how to use A and N. So let's discuss it again and then move on to the next topic. So how to use A and N. So the use of A and N is determined by the sound. That yesterday we have read that everything you can't depend on alphabets every time. So things are also depend on the sound. So vowel sound and consonant sound. So basically the sound give you the exact thing that where you have to just write a or an or use a or an. So the following words begin with a vowel but not a vowel sound. कुछ ऐसे words हैं जो vowel से start होते हैं but vowel sound नहीं है. तो हमें vowel से start होता है ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि वो words vowel sound से start हो students. So like a unique thing. तो why we write a here? Because unique जो है उसका जो sound है that is not a e I or u. Okay, then next one is a rupee, a 1 rupee coin. Next one is a European, a unicorn, a university, a useful thing, a union. So here A is used on the other hand with following words and an used although they begin with a consonant. इसी तरह अगर हम an को देखें like an hour, an honest man, an hire, to throne, an MCA. Here the sound is criterion to decide whether A and an will be used. As I told you कि sound पे हम पूरी तरह dependent होंगे कि हम A use करें या N use करें. Use the definite article the. तो आज हम freshly क्या पढ़ने वाले हैं? Definite article the को कहाँ use किया जाता है. So the is used before singular countable noun, plural countable noun and uncountable noun. The को singular, plural और uncountable nouns के पहले, before here means पहले use किया जाता है, and uncountable noun do not have plural form. और uncountable noun के कोई plural form नहीं होते हैं. Like here, you can't write here's. Like that. We cannot say sugar. हम शुगर को शुगर ही बोलते बट शुगर्स नहीं कह सकते, जबकि चाहे 1 किलो चीनी हो, चाहे 250 ग्राम हो, और लाइक एक हमारे सामने एक सैक रखा हो, शुगर सैक, बट हम उसको शुगर ही बोलेंगे, शुगर्स नहीं बोलेंगे बिकॉज वो अनकाउंटेबल है. सिमिलरली लाइक हेयर स्टार वी विल से द शुगर. तो हम क्या बोलते हैं? द शुगर, द स्टार. The is used while talking about a particular person or thing one already referred to. That is when it is clear from context which one we mean. The book you want is not available. जो बुक तुम्हें चाहिए वो अभी अवेलेबल नहीं है. When a singular noun represent the whole class, example, the dog is a faithful animal. द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. सो हियर जब एक सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट करता है पूरी क्लास को, यानी एक डॉग की पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो द डॉग आता है. अगर यहाँ किसी डॉग का नाम स्पेसिफिक होता तो शायद नहीं आता. बिफोर सम प्रॉपर नेम्स दैट डिनोट फिजिकल फीचर्स. ऐसे कुछ प्रॉपर नेम जो फिजिकल फीचर्स को डिनोट करते हैं, लाइक ओशंस एंड सीज, द पैसिफिक, the Arabian Sea, the Indian Ocean, like that. Rivers, the Ganga, the Thames, the Yamuna, etc. Next one is the Suez Canal. Next is before some proper names that denote physical features. अब द और कहाँ यूज हो सकता है स्टूडेंट्स? जहाँ पर कुछ फिजिकल फीचर्स या बिफोर सम प्रॉपर नेम्स दैट डिनोट फिजिकल फीचर्स. ऐसे प्रॉपर नेम जहाँ पे फिजिकल फीचर्स को ड्रॉ किया जा रहा है. ओशंस एंड सीज, द पैसिफिक, द अरेबियन सी. Rivers, the Ganga, the Thames. Deserts, the Thar Desert, the Sahara Desert.
Group of islands like the West Indies, the Netherlands. Mountain ranges, the Himalayas, the Satpura. A few names of countries which include words like states, republic, or kingdom. Example, the People Republic of China, the United Kingdom, the USA, the Republic of Korea, the Hague, etc. Before the name of religious, mythological, like, तो इस तरह रिलीजियस और माइथोलॉजिकल इनके यहाँ पर भी आएगा, जैसे कि द वेदास, द पुराणास, द महाभारत. बट वी से होमर, इलियाद, वाल्मीकि रामायण, ऐसे. नेक्स्ट इज बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस माइथोलॉजिकल के बाद अब हम हैं बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक एंड वन ऑफ देयर काइंड. ऐसी चीज़ जो यूनिक है या एक ही है, like the sun, the moon, the Pacific Ocean. Before a proper noun, when it is qualified by an adjective or defining adjectival clause. एक ऐसे proper noun के पहले जो qualified करता है क्या, एक adjective या define करता है adjectival clause. Like the great Caesar, the king of Rome, the Mr. Verma who you met last night is my boss. इस तरीके के प्रॉपर नाउन्स पे भी हम द यूज करेंगे. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन इज सेवेंथ वन विथ सुपरलेटिव डिग्रीज. व्हाट आर सुपरलेटिव डिग्रीज? लाइक गुड, बेटर, बेस्ट. तो बेस्ट वन इज द सुपरलेटिव डिग्री. इसी तरह मोर ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल एंड मोस्ट ब्यूटिफुल. अगर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की हम बात करें तो there are third degrees of comparison, superlative degree, comparative degree and the first one degree, that is. तो अभी हम यहाँ superlative degree की बात कर रहे हैं, like worse, bad, worse, worst. So अभी हम कहाँ यूज कर रहे हैं? worst यूज कर रहे हैं, because worst is the superlative degree. So this is the worst performance I have ever seen. इसीलिए worst के आगे क्या लिखा है? the, because bad, worse और worst, तो उसकी superlative degree है worst, bad की. इसीलिए जो worst है उसके आगे हमने the लगाया है. Next one is with ordinal number. You all have aware of cardinal number and ordinal number. So जो ordinal number होते हैं उनके लिए भी हम द यूज करते हैं. लाइक ही वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून. सो फर्स्ट इज ऑर्डिनल नंबर, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो ऑर्डिनल नंबर के आगे भी हम द लगाते हैं. बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. अब हम द नाइन्थली कहाँ लगाते हैं? जहाँ नाइन्थ पॉइंट जो है वो हमारा ये है कि हम द कहाँ लगाते हैं? बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात होती है तो वहाँ पे भी, like he can play the tabla rhythmatically. Tabla is a musical instrument, that is why we use the before tabla here, students. Next one is your he can play the tabla rhythmatically. उसके बाद आप हारमोनियम होता है या कोई भी और होता. नेक्स्ट वन इज बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन नाउन इज अंडरस्टूड. एक एडजेक्टिव के पहले जहाँ नाउन हमें पहले से ही समझ में आ रहा है. So the rich always exploit the poor. अब the rich always exploit the poor. एडजेक्टिव है, विशेषता है, रिच होना और पुअर होना. तो इन दोनों के पहले ही हमने क्या लगाया है? द लगाया है. क्यों लगाया है? बिकॉज हमें बिफोर द एडजेक्टिव एंड द नाउन इज अंडरस्टूड. जब हमें नाउन का पता है. योर द वर्ड पीपल इज अंडरस्टूड. तो द रिच ऑलवेज एक्सप्लॉइट द पुअर. तो रिच हमें पहले से ही पता है कि रिच कौन होगा, ऑब्वियसली पीपल ही होंगे. पुअर कौन होगा? पीपल होंगे. तो लोगों की बात करिए जहाँ पे हमें नाउन अंडरस्टूड है कि लोग नाउन है, तो नाउन के आगे लगा है द रिच, द पुअर. नेक्स्ट वन इज 11th वन, एज एन एडवर्ब विथ कंपैरेटिव्स. एग्जाम्पल, द मोर मनी वी हैव द मोर वी वॉन्ट. ऐसे एडवर्ब्स. एडवर्ब्स इज व्हाट स्टूडेंट्स? क्रिया विशेषण. सो क्रिया जो है, जो उसकी विशेषता बता रहे, तो क्रिया विशेषण में यह मोर, तो मोर के आगे क्या लगा है? द. क्यों?
क्योंकि विथ कंपैरेटिव्स हैं, लाइक द मोर मनी वी हैव द मोर वी वांट, जितना ज़्यादा हमारे पास पैसा होता है हमें उतना ही चाहिए होता है. So move on to omission of article the. Before material abstract, before material abstract and proper noun used in general sense. Example. So ऐसी जगहों पे जहाँ पे मटीरियल या एब्स्ट्रैक्ट या प्रॉपर नाउन होते हैं जनरल सेंस में, लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नॉट द ऑनेस्टी. तो यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आएगा, द ऑनेस्टी इज द रॉन्ग वन, बिकॉज यहाँ आर्टिकल द नहीं आएगा. नेक्स्ट वन, वी हैव रेड दैट शुगर के आगे आता है, बट इधर नहीं आएगा. शुगर टेस्ट स्वीट, नॉट द शुगर टेस्ट स्वीट. ठीक है. सिक्स्थ वन इज, सॉरी, सी इज पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, नॉट द पेरिस. ठीक है स्टूडेंट्स. सो बिफोर मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन के साथ में, तो तीनों के एग्जाम्पल दे दिए आपको. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन एंड प्रॉपर नाउन. इन तीनों में ही ऐसे अगर यूज होता है तो हम द नहीं लगाएंगे. बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज इन जनरल सेंस, लाइक अब प्लूरल है, बच्चे हैं, लाइक बच्चे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर लाइक प्लूरल एंड अ काउंटेबल नाउन. सो इसके आगे मैंने द चिल्ड्रन है, सो चिल्ड्रन लाइक टॉयज. बिफोर नेम ऑफ पीपल, एग्जाम्पल रोहित, यहाँ भी नहीं लगाएंगे. बिफोर नेम ऑफ कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज, लाइक यूरोप, पाकिस्तान, द पाकिस्तान नहीं बोलेंगे, द नागपुर नहीं बोलेंगे, द यूरोप भी नहीं बोलेंगे. सो बिफोर नेम ऑफ पीपल, लाइक एग्जाम्पल रोहित. बिफोर नेम ऑफ कॉन्टिनेंट, कंट्रीज एंड ऑल दीज थिंग्स. एंड बिफोर नेम ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन, लाइक माउंट एवरेस्ट. बिफोर नेम ऑफ मील्स यूज इन जनरल सेंस, लाइक डिनर इज रेडी. ठीक है. द डिनर इज रेडी नहीं. बिफोर लैंग्वेज एंड वर्ड्स लाइक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल. आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, मैंने इंग्लिश स्कूल में सीखी थी, द स्कूल नहीं लगाएंगे. नेक्स्ट वन इज माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, स्टिल इन द नहीं. बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर. फादर इज स्टिल नॉट एट होम, फादर अभी होम पे नहीं है, द फादर नहीं आएगा. In certain phrases consisting of preposition followed by its object, कुछ ऐसे phrases हैं जिनमें preposition भी use होता है, like at home, in hand, by night, in case, on foot, by train, on demand, etc. So I hope students that you very well understood this topic today. Where we just discussed about this use of article the here. We'll discuss the next part of this video in our next one. Okay, till then, stay safe all of you. Thank you all.